Ji, good morning to all of you. So all of you have covered your backlog. जिसका नहीं था उसको तो नहीं था, जिसका था उसका. हाँ जी, how are you Manjeet? Okay. हाँ जी, good morning to all of you in the online. So today we are going to start our topic. So with this topic you are going to have a formal start with the economics. So today our topic for discussion is economic growth and economic development. Okay, so let's not make it complicated. I am not going to ask the economic aspect related to growth and development, but what I want to ask is which one is more comprehensive? I am not going to ask the economic aspect. You just need to tell me growth and development, which one is more comprehensive? Why? Because it also covers the social aspects and overall development, Forget all the economic, social, political, cultural, all the aspects. I am just want to ask the growth and development as a word. Which one is more comprehensive? डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंक्लूजन होता है और ग्रोथ में सिर्फ Okay, so if it is inclusive growth, then इंक्लूसिव which one is qualitative? Development is qualitative, fine. Then okay, growth is quantitative. So I am not asking the features, I am just asking which one is more comprehensive. हाँ जी, पीछे तक आवाज आ रहा है ना? What happened? क्या हुआ? तो आप ऐसे हाथ हिला रहे थे वही. ओके ओके. I thought ऑनलाइन में, हाँ जी ऑनलाइन में सही से आवाज आ रहा है ना? Am I audible? Okay. Growth will lead to development. Okay. it is an end, you can say, point. Okay, but growth can stand independent, but develop. So जो independent है वो अच्छा होना चाहिए. Then so I am not asking for अच्छा, I am asking which one is more comprehensive. Okay, economic aspect भूल जाइए, आप economics नहीं पढ़ रहे हो. Then your personal growth, your personal development. Individual पे मैम growth, मैम health, social, everything it comes under development. So I am just confusing you, and you all are going to confuse. a country can grow but it cannot develop. If I am not asking for the country, it's growth. For culture ही हाथ खड़ा कर लिया, growth है. Okay. मैं चाहती थी आप growth answer दे. Why? Because growth is not the answer. हाँ जी. So in the growth and in the development, as the name suggests, अब आप grow कर सकते हो. Your mind may grow. From आप ये लगा लीजिए from the childhood till your education. आपका graduation तक, post graduation तक. But after that, उस point के बाद you are going to grow your mind with development. Because if your mind is developed, only then you are able to do many things. Your mind may grow, और उस growth के साथ you are just adding some information. But now here you are going to appear for the UPSC, and for the UPSC you just need the growth. You need the development, the upper level of your mind, basically the ethics. हाँ जी, कौन कौन ethics apply करता है? कौन कौन ethics apply नहीं करता? That means जो ethics apply नहीं करते, they are going to have some money टेबल के नीचे से. Sir, that assistant sir was telling it was about 3P. First power, हाँ हाँ, then prestige, prestige, then पैसा. पैसा. बट वो जो ethics नहीं है, then पैसा. पहले पैसा, फिर उसके बाद पावर, फिर उसके बाद प्रेस्टीज, फिर उसके बाद पॉवर्टी.
क्योंकि अगर जेल चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वो वाला सीन हो जाता है. ओके, सो नाउ बैक टू आवर टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन दिस टॉपिक डेवलपमेंट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव. ग्रोथ का लिमिट लाइक व्हाट? यस यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है. उसको हम समझेंगे इंडिविजुअल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ. सो अब क्वेश्चन मंजीत ने पूछा है तो आंसर देना ही पड़ेगा. ओके, हाँ जी. सो आप सबने मास्लो नीड हायरार्की हैव यू हर्ड? ओके, व्हाट इज इट? ओके, psychological needs, okay, and self actualization, self esteem, okay, very good, very good. So 1 point to you Sudhanshu. And ये एडमिशन नहीं लिया ना अभी आपने? ओके, जब ले लोगे तो आप अपना पॉइंट रिडीम करवा लेना, ठीक है? ओके, हाँ जी. तो हाँ जी, फर्स्ट है ना, तालियां हो जाए इनके लिए. हाँ जी, इन दी ऑनलाइन एवरीवन इज सेइंग जस्ट डेवलपमेंट. ओके, फाइन, मान लेते हैं डेवलपमेंट. सो एज ऑल ऑफ यू हैव टोल्ड मी दैट ग्रोथ इज basically a quantitative measure and development it is a qualitative measure. Fine. So when you have some quantifying things in your hand, so you are going to calculate those, and on the basis of that particular calculation you are going to tell me the number, and with the comparison with previous numbers you are going to tell me that हाँ growth हुआ है या growth नहीं हुआ. So वो comparison क्या होगा? वो comparison ये होगा कि suppose we are in 2022, so I am going to compare the number of 2022 with 2021 or 2020. हो रहा है ना क्लियर? So अब सवाल ये उठता है what are those numbers? So वो नंबर क्या होंगे जो इंडिकेट करते हैं. नाउ कंसीडर दिस थिंग, आई एम इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा क्या? जीडीपी. सो जीडीपी इज द, am I asking for the full form? So it is the total value of goods and services produced in a domestic territory within a year or a specific time period. Very good, very good. हाँ जी, और कुछ सीखे ना सीखे ABCD तो इकोनॉमिक्स का सीख ही जाएंगे. So जब भी हम ऐसे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जिन्हें हम क्वांटिफाई कर सकते हैं तब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की. सो इजी हो जाता है टू कैलकुलेट योर इकोनॉमिक ग्रोथ, इजी हो जाता है टू कंपेयर योर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट यू कैन नॉट कंपेयर द डेवलपमेंट एस्पेक्ट. डेवलपमेंट एस्पेक्ट इट इज समथिंग विच इज क्वालिटेटिव. अब आपको लग सकता है दैट योर माइंड इज डेवलप्ड और इसीलिए आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करने आए हो. यू ऑल आर मैच्योर्ड, यू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग. बट अगर जैसे ही आप एंटर हुए यूपीएससी प्रिपरेशन में आपने अपने से बड़े बड़े महारथी को देखा एंड देन यू कम टू नो कि नहीं अभी और करना है, अभी यू आर इन द ग्रोथ स्टेज, यू नीड टू डेवलप मोर. सो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज वी डू नॉट हैव अ मेजर कि उसके साथ हम पता लगा पाए कि हम डेवलपमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं. ठीक है, सो अभी वो हमारे पास नहीं है. बट अगर डेवलपमेंट को फिर भी मेजर करना हो सो देयर आर सो मैनी इंस्टीट्यूशंस जो कुछ इंडेक्स लेके आए हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम यहाँ आ जाते हैं दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर. ठीक है, अब उसके बाद आता है jobless growth. Okay, so in the context of jobless growth there is growth. Yes, तो आप मानोगे there is economic growth, बिल्कुल है. But that economic growth is not creating job. That economic particular growth is not creating job. So क्या तब आप उस jobless growth का condition को you will say that we are near to achieve that economic development stage? You won't say. Okay. So first thing is, suppose we have money in our hand and with that money we are going to start a business. Okay, start कर लिया. So when you are starting a business, आप करने क्या जा रहे हो? You are just going to produce. So first stage is that you are going to produce something. When you are producing something, तो वो जो आप produce कर रहे हो ऐसे ही लग जाओगे क्या? You will study the market.
You will study the demand, and when you are going to study the demand, in that particular perspective, you are going to produce that product which is being needed by the public, which is being demanded by the public. So when you are going to produce, so अब आपने produce किया है, so other producers or other persons who have the money or the industrial strength or power in their mind, they are also going to imitate you. आपको वो भी पीछा करेंगे, वो भी देखेंगे कि हाँ जो आपने बनाया है इसमें फायदा लग रहा है, हम भी सेम बनाएं. So पहले सपोज कीजिए अर्लियर वी हैव वाइट भी नहीं ब्लैक बोर्ड होता था विद द वाइट चौक, डस्ट पूरा उड़ता था. ओके उसके बाद क्या आया, देयर इज इन्वेंशन, वाइट बोर्ड आया विद द ब्लैक मार्कर. ठीक है, सो उसमें क्या होता था, फिर उसमें पूरा हाथ पीछे का ब्लैक हो जाता था क्योंकि उसको वो रब करना पड़ता था. फिर और इन्वेंशन, और उसके साथ ही क्या होता था कि मान लीजिए कोई पीपीटी या ऐसा कुछ शो करना है, सो वी हैव अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के थ्रू शो होता था. सो अब डिजिटल बोर्ड आ गया है. डिजिटल बोर्ड ने क्या, पहले किसी ने इन्वेंट किया होगा, अब आपको मार्केट में हर जगह डिजिटल बोर्ड दिखाई देंगे. सो धीरे धीरे इमिटेट करके मार्केट को कैप्चर कर लिया जाता है. सो अब फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, प्रोडक्शन, देन अदर प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू इमिटेट यू. सो उससे क्या हो जाएगा, अदर प्रोड्यूसर्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस, तो पूरा एक इंडस्ट्री बन जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, सो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे ही those industries they will demand for the labor. If they are demanding for the labor, so the public they will get the job. So if they are getting the job, we are going to reduce the unemployment. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो ये भी आ सकता था कि we are increasing the employment. So I would say in India you all know the scenario कि there is unemployment, there is less job, there is jobless growth. So if there is jobless growth, then first we will try to reduce the unemployment, then we would say that we are in a condition कि अब हम employment provide करवा सकते हैं. So then we are going to reduce the unemployment. हाँ, When we provide employment, then it convert into economic growth. अभी उस पे भी आएंगे, ठीक है. सो अब आपने क्या किया है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर दिया है. सो दोज पर्सन हु आर अर्लियर अनएम्प्लॉयड नाउ बीइंग एम्प्लॉयड, तो उस पर्टिकुलर फैमिली में देयर इनकम इज गोइंग टू रेज. एज देयर इनकम इज गोइंग टू रेज, तो उससे होगा क्या, उससे दे विल डिमांड, बट एकदम से थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ना इसको, ठीक है. हाँ जी, बट वेरी गुड अनूप, दिस टाइम नो माइनस, ठीक है. बट हाँ, इंक्रीज तो वो बेचारे चाहते ही नहीं है. ही जस्ट वांट टू रिड्यूस उसका जो माइनस का पॉइंट है उसको. सो अब बेसिक होगा क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, सो द फैमिलीज हु आर अर्लियर अनएम्प्लॉयड दे आर पुअर, नाउ दे आर एम्प्लॉयड. सो इससे होगा क्या, वी विल गोइंग टू डिक्रीज द पॉवर्टी. ठीक है, अब जैसे ही पॉवर्टी रिड्यूस हुआ है, ऐसे ही उस पर्टिकुलर फैमिली में देयर हंगर दैट विल रिड्यूस, बिकॉज इससे पॉवर्टी कम हुआ है. अब इन इंडिया फर्स्ट थिंग क्या आ जाती है, फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, दैट इज फूड. अब पॉवर्टी का मेजर हमारे लिए क्या है, ये नहीं है कि द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड द आईफोन दैट पर्सन इज पुअर. हमारे लिए है द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड द 2-time meal, that particular person is poor. So it is going to reduce the hunger. ठीक है, that is going to reduce the hunger. अब जैसे ही उनका हंगर रिड्यूस होगा, उस हंगर रिड्यूस होने के साथ साथ धीरे धीरे they are going to have a डिमांड किया है तभी तो पॉवर्टी कम करके नहीं डेवलप. दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. 1.2 यू, आपका नाम बोलगी निशा, यस. सो 1.2 यू. सो इससे होगा क्या, बेसिकली इट विल इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ऐसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहा तो ऐसे ही फिर वो साइकिल बन जाएगा. जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो आप अपने स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए यू विल डिमांड मोर.
सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिमांड मोर, उससे देयर इज मोर प्रोडक्शन, जैसे और प्रोडक्शन होगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लूप. नाउ टेल मी with your own presence of mind, which points you will indicate as the economic growth, which points you will indicate as the economic development. Time लो आराम से. Production, industrialization, unemployment. Is basically the economic growth. Okay, how many of you are agree with his statement? He is saying, Hanji, in the online as well, he is saying the production, industrialization and unemployment, these three indicates the economic growth. Ma'am, decrease unemployment, decrease poverty, decrease hunger is economic development. So you are saying from here to here, this is economic development, and these two are okay. Why? So you are saying only these two are industrial economic growth. Hanji, Abhi, okay. Now, Hanji, in the online, let me see. Poverty, unemployment is so Abhishek. Only poverty and unemployment is economic development. Unemployment indicates development. Okay. From the point unemployment, you are saying basically, Sanjeev. किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में. ओके. इंडस्ट्रियलाइज आप अनएम्प्लॉयमेंट वाले सारे डेवलपमेंट में आएंगे. हाँ जी, लास्ट तक आंसर चाहिए मुझे. जैसे कुछ तो होता है कि पूरा भंडारे में सेवा भी लगाया है, कुछ होता है भंडारे में सेवा नहीं लगाया, सिर्फ प्रसाद खाने आए हैं. हाँ जी, बताना पड़ेगा. हाँ जी, आप दोनों को. So you are saying only production indicates the economic growth. These 2 points. Okay. हाँ जी. You. हाँ जी आप. अच्छा आप first 2. हाँ जी आप. First 2. Okay. So. Okay. Tell me. Economic development में आएगा. और मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर डायरेक्ट Okay. Let me confuse you. You can measure unemployment in numbers. You can measure poverty in numbers. You can measure hunger in numbers. You cannot measure standard of living in numbers. Earlier, you all were saying economic development, it is something which is a qualitative, and you cannot measure the quality. It is all relative, depends upon the person interpretation. So now tell me why you are including unemployment, poverty and hunger in the economic development. हाँ, so why you are saying so? So that's what I am saying, that कि ये सब measure हो जाते हैं, and you all are saying these indicates the economic development. You cannot precisely measure कि कितनी industries ने कितना industrialization किया. हाँ जी. Yes. Okay, very good. हाँ जी, in the online it is improving the quality of life. There is Sakshi बोल रहे हैं no lead to development. अंकुर, एक second, let me see your answer. No अंकुर, मैंने कंफ्यूज किया और आप मेरे जाल में फंस चुके हो. एंड शीनू. देखिए, why you can measure the economic development as well, but that is going to be qualitative. That is not going to be accurate. अब accuracy तो इन 2 points में भी नहीं होने वाली है, वो भी नहीं होने वाली है. But the point is that industrialization it does not necessitate कि वहाँ पे further उसका benefit जो है वो आप other parties को भी दोगे. Means if there is jobless growth, if there is growth that is jobless,
तो उसका जो ट्रिकल डाउन बेनिफिट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है टू द मासेस. बाय द मीन डेवलपमेंट आई मीन द इंक्लूसिव ग्रोथ. It means growth with development of all the segments of the economy. Economic development, it indicates that growth with development of all the sector of the economy. So अगर वो है, so suppose this industrialization is not transferring the benefit to the masses. अगर ये industrialization is going to increase the income inequality, तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना. बट जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, ये इंश्योर करता है दैट देयर इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द मासेस. क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, किसका हो रहा है? जो वो पब्लिक जिसके पास जॉब नहीं थी और जिसको जॉब की नीड थी, उनके लिए हो रहा है ना. सो इस वजह से ये पॉइंट नेसेसिटेट कर देता है कि जो बेनिफिट है वो ऑल सेगमेंट को पहुंच रहा है. अब अगर इसमें ओवर थिंकिंग करोगे तो आप बोलोगे कि क्या पता एक को मिल रहा हो, बट यहाँ बात हो रही है कि यहाँ अनस्किल्ड वर्क जो कि इंडस्ट्रीज को चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं. दैट्स वाई इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैंने क्यों जानबूझ के बताया है, क्योंकि अगर कोई माइंड को कंडीशन कर लेता है ना कि इट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो वो अपने आंसर को फिर उसी तरीके से गलत कर देते हैं. इसी वजह से मैंने कंफ्यूज किया और कंफ्यूज आप सब हो गए, ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं आया. बट यहाँ से आपको बस ये सोचना है कि विद द रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट देन पॉवर्टी, यहाँ ट्रिकलिंग डाउन, व्हेनेवर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ इज ट्रिकलिंग डाउन टू द मासेस, देन वी आर गोइंग टू एंटर इन दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इट इज प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट दीज. ठीक है, सो ये आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. हाँ जी, एक सेकंड साक्षी. हाँ जी साक्षी, आपको पॉइंट मिल रहा है. फर्स्ट टाइम होगा ना आपका? हाँ जी, अरे साक्षी के लिए तालियां हो जाएं. अच्छा, वो अरे ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले थोड़ा आपके साथ बहस लगाते हैं. ऑनलाइन वाले खुद के लिए बजाओ फिर ताली, इमोजी भेज दीजिए. हाँ जी, हाँ जी, मलिक एंड शिवांगी, ये देखो दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं, ऑफलाइन वालों की तरह नहीं है. अरे आफ्ताब आज आए हो आप? वो बाद में देंगे ना, पहले हमारा है कि काम ही नहीं है, वो देंगे तभी फायदा होना स्टार्ट करेगा. अगर हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया, दिस डिफरेंट. अब वही है, एक गिलास में आप ये बोल सकते हो आधा खाली है, आप बोल सकते हो आधा भरा हुआ है. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव. यहाँ वो पर्सपेक्टिव दिखाना है. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल कम टू नो कि कौन से में कौन सा नेगेटिव वाला एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाना है या पॉजिटिव वाला दिखाना है. यहाँ नेगेटिव वाला दिखाना है कि उससे हम पॉजिटिव पे आना स्टार्ट हुए हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव. हाँ जी, अभी बताने वाली हूँ. तो लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth refers to increase that is witnessed in the monetary value of all the goods and services produced in the economy during a time period
during a time period. It is a quantitative measure. It is a quantitative measure which reflects the potential increase in the number of business transactions taking place in the economy. It is a narrow concept. Okay, so मैं लिखवा नहीं रही हूँ, but you all need to understand this thing. It is a narrow concept in relation with economic development. It may be wider अगर किसी और से कंपैरिजन करें, बट यहाँ हम लेके चल रहे हैं किससे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. ओके, सो वापस से लिखिए नेक्स्ट हेडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It refers to the process by which the overall health, economic development refers to the process by which the overall health, well-being and academic level of the general population of a nation improves. It is a qualitative improvement. In the life of citizen, and determined by some development index. Can you tell me some example which will I'm not going to ask this. I am asking, can you tell me some indicators which can indicate that you are on the stage of economic development? So poverty is going to indicate that you are developed. Poverty is not going to indicate, it is going to indicate you are not developed. Food security, employment, okay. Standard of living. हाँ? Education, हाँ जी हो गया. Easy escape. हाँ जी in the online health infrastructure, happiness index, literacy. हाँ जी अविनाश, happiness index develop दिखाएगा आपको. Happiness report, literacy rate. So your quality of life. Okay, so let me confuse you further. So suppose your family income is 5 lakh rupees and you are 5 member in your family. Suppose only your father is earning and other 4 person are dependent upon him. So as per this, per person
मीन्स पर मेंबर इन द फैमिली उनका कोटा कितना बनेगा 1 लाख रुपीज. दैट मीन्स इफ द फैमिली इनकम इज 5 लाख. हाँ जी, जो खुश हो रहे हैं ये सिर्फ मैं सपोज करने के लिए बोल रही हूँ, 1 लाख आपको नहीं मिलने वाला है. सो मीन्स क्या है कि मान लीजिए 5 मेंबर थे तो आपका कोटा बनता है 1 लाख का. दैट मीन्स ये 1 लाख जो है दे शुड बिलोंग टू यू, बट बिकॉज योर ओनली योर फादर इज अर्निंग, बट उसके हिसाब से भी अगर 1 लाख का हिसाब बनता है तो भी आपका पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा कंपैरेटिवली. वाई? बिकॉज पॉकेट मनी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. 1 लाख तो नहीं मिलेंगे बट इतने तो मिलेंगे कि आपका बढ़िया आप टशन मार सकते हो फ्रेंड्स के बीच में बैठ के, इतना तो मिलेगा ही. सो यहाँ से क्या निकला है, व्हेन आई एम टेकिंग द फैमिली इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर मेंबर कितने हैं उससे, सो उससे मुझे मिल रहा है पर मेंबर का कोटा कि कितना होना चाहिए. अब इसे मैं चेंज कर रही हूँ इन टर्म्स को. हेयर आई एम पुटिंग द नेशनल इनकम. ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन लेते हैं बेसिकली. सो यहाँ पे हम लेंगे क्या पॉपुलेशन. सो उससे क्या निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम. per capita income. Can I indicate your standard of living with your family income only? Can I? How? Suppose this family is a joint family and they have 50 members. Means you only know one thing, that the family income is 5 lakh and you don't know the number of members. तो क्या उस इंडिकेशन के बेसिस पे could you indicate कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा फैमिली का? नहीं ना, नहीं कर सकते. बट नाउ यू नो द मेंबर्स and you know the per person quota. Could you indicate the standard of living? You can indicate. So ऐसा ही सेम आ जाइए. You know the national income. So national income आपने क्या किया? You calculated the value of the national income और उससे क्या आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर जो इकोनॉमी है दैट इज पुअर और रिच, नेशनल इनकम के बेसिस पे नहीं पता चल सकता. यू नीड टू सी द पर कैपिटा इनकम. कि सपोज करिए हमारा जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है बट हमारा पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, उस कंपैरिजन में पर कैपिटा इनकम कितना ज़्यादा लो हो जाएगा. सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि national income it shows the economic growth and per capita income it shows the economic development. But can I say per capita income it also shows the economic growth? No? Why? Who said yes? You said yes. कह सकते हैं per capita income can also come into economic growth and in economic development. Why no? नहीं, what are you saying? I am asking कि per capita income it only comes under the economic development. Now I am asking, can the per capita income come under the economic growth? नेशनल इनकम से ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं आप. नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ. अच्छा, ऐसे तो वो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही तो अनएम्प्लॉयमेंट पे पहुंचे थे, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में था, उसको डेवलपमेंट में क्यों डाला? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. 1 पॉइंट टू यू अभिनव जी. सो कितने हो गए आपके? 2 5 हो गए हैं. अच्छा, अभी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, कम दूंगी आगे से. ठीक है. सो आंसर इसका ये था कि पर कैपिटा इनकम इट कैन शो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट ये एक चीज और शो करती है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसने शो किया था. व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटिव. जैसे यहाँ पे 1 लाख आपको मिला नहीं है बट उसके हिसाब से आपको पॉकेट मनी तो इतना मिला है कि आप अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं. इन द सेम सेंस पर कैपिटा इनकम एक्चुअली में वो इनकम होती तो नहीं है ना लाइक दिस, बट वो इनकम ये तो शो कर सकती है कि यस यू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो जब वो एक्चुअली में इतना इनकम नहीं मिल रहा होता है तो वो इंडिकेट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एस्पेक्ट. बट जब इक्वालिटी हो और एक्चुअली में उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, देन वी वुड कैटेगराइज दिस पर कैपिटा इनकम अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अदरवाइज तो जीडीपी
and national income, they are, and per capita income, they are the indicator of economic growth. But that particular aspect of per capita income which indicates the economic development or the standard of living, that comes under development part. So is it clear to everyone? Now just read the two definition of economic growth and economic development and let's the things settle into your mind. आराम से पढ़िए और फिर पूछिए कि कोई डाउट तो नहीं है इन दोनों में. हाँ जी, वेरी गुड अल्फिया, वेरी गुड. हाँ जी शिवांगी, अभी बताइए, अभी क्लैरिटी मिला? यस एग्जैक्टली दीपराज, वेरी गुड. yes Abhi, right, you can say like that, exactly right. And that economic activities they are for the benefit of the masses और उससे उसका इफेक्ट जो है वो स्प्रेड हो रहा है. हाँ जी, पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया ना? जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो कि इन कंपैरिजन टू अदर आपका पढ़ने का स्पीड स्लो है और ये हाई टाइम है जब आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है और अपना स्पीड, मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखो और कंफर्ट जोन में रख के ये बोलो कि मुझे तो आराम से पढ़ के ही समझ आता है. समझ आता है आपको, आराम से पढ़ के ही आता है, बट आपको ट्रेन करना है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के, सो दैट कि आप टाइम का, क्योंकि टाइम ही मनी है, तो जो जितना ज़्यादा पैसा कमाता है उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है. तो जो जितना ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज कर सकता है उसे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा ये प्रोसेस में. अदरवाइज सिलेबस सेम है, टाइम सबके पास सेम है, सब वही चीज़ पढ़ते हैं, कोई बेनिफिट उठा लेता है, कोई नहीं उठा पाता है. इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्टिकुलर पर्सन एबिलिटी, कैपेबिलिटी. ठीक है? सो मैं कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं लाना चाहती हूँ आपके मन में, बट जस्ट आई वॉन्ट टू शो कि आपको अपने आप को उस अपकमिंग चैलेंज के लेवल तक का बनाना है. ठीक है? सो अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम जाते हैं, जो ये वैल्यू एडिशन टाइप है, ये आप अपना इन योर एसे, इन योर एथिक्स पेपर और इकोनॉमिक्स में तो है ही, जीएस पेपर 3 में यू कैन यूज इट एनीवेयर. सो हम बात कर रहे हैं जो मास्लो नीड हायरार्की है उसका. हाँ जी, साथ साथ बनाते चलना. तो इन्होंने अपना एक बुक दिया था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. आपको क्या लगता है व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ अ पर्सन? कि कुछ भी नहीं है, बस उसको सबसे फूड एंड वाटर, फूड में ही आ जाएगा वो, शेल्टर, क्लोथिंग. सो हाँ,
व्हाट ही सेड? अच्छा, रोटी कपड़ा मकान. सो व्हाट आर दी फर्स्ट बेसिक नीड? कि अगर एक पर्सन जो है उसे पता ही चलता है कि ये दुनिया है, सो द फर्स्ट नीड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हिज फिजियोलॉजिकल नीड, नॉट द साइकोलॉजिकल बट द फिजियोलॉजिकल नीड. ठीक है, सो फिजियोलॉजिकल नीड हम लिखेंगे. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जैसे ही आपकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हुई, नीचे दिखाई दे रहा है ना, मैंने लिखा है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जैसे ही आपकी ये नीड फुलफिल होगी, सो नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू कि आपका लालच जो है इज गोइंग टू इंक्रीज, ग्रीड बढ़ता जाएगा. सो अभी आपको, पहले आपको था बस जॉब मिल जाए. नाउ व्हाट यू वांट कि ये जो जॉब मुझे मिली है ये मेरी जॉब रहे. सो नाउ यू वांट जॉब सिक्योरिटी. यू हैव सम सिक्योरिटी नीड्स. अब सिक्योरिटी क्या चाहिए? कि चोर ना आके आपको पकड़े. आपको सिक्योरिटी ये चाहिए कि मुझे इतना सफिशिएंट बनना है कि चोर भी अफेक्ट ना कर पाए. यू नीड अ जॉब सिक्योरिटी. सो योर सिक्योरिटी नीड्स. So your security needs. अब आपकी सिक्योरिटी में आपका मेन जो है दैट इज जॉब सिक्योरिटी. अब आपको जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है, यू हैव द जॉब इन योर हैंड. अब आपके पास ये जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, इससे भी आप एक अपर स्टेज पे पहुंच चुके हैं. नाउ यू हैव अ जॉब इन योर हैंड. अभी नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? हाँ, नहीं, बट फॉर दी आर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दैट इज अंडर फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, अब क्योंकि वी हैव टेकन द मास्लो नीड हायरार्की फॉर इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दैट्स व्हाई. ठीक है, हाँ जी बताइए. हेल्थ, ओके. इन्वेस्टमेंट, अभी से क्या करोगे इन्वेस्टमेंट का? सो देन कम अंडर योर सोशल नीड्स. You have job in your hand, you have independency in your hand. After that independency you want कि आपके आस पास के लोग, अभी वही होता है ना कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सब आपके साथ रहते हैं, अगर बुरा कर रहे हो तो कोई भी नहीं है साथ में. पर जब आप अच्छा कर रहे हो और आपके साथ में सब है तो आप चाहते हो, वाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. तो उसको लव, रिलेशनशिप, फैमिली, नेबर, ये सब चाहिए होता है. और क्योंकि इसके साथ ही उसके पास क्या आती है? उसके पास पॉजिटिवनेस आती है. क्या एक अकेला पर्सन रह सकता है? नहीं रह सकता ना. तो सोसाइटी चाहिए, तो इसमें हम लिखेंगे फ्रेंडशिप. मीन्स बेसिकली द सोशल रिलेशन. ठीक है, अभी ये क्या है, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट हम ना इसको सिंपलेस्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लेके चल रहे हैं. जैसे आपका फ्रेंडशिप वगैरह ये सब मिल गया, अब आप क्या चाहते हो? अब आप ये चाहते हो कि आपको सब लोग जाने, पहचाने, फेम, प्रेस्टीज. ठीक है, सो वो किससे आएगी? सेल्फ एस्टीम. मीन्स आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो आपने काम किया है उस काम की वजह से यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. अब लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, एंड यू आर फीलिंग कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है. उसके बाद किस स्टेज के ऊपर आप एंटर होगे? कि अब निर्वाणा का स्टेज आ चुका है. ठीक है, हाँ, मीन्स कि अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे? लालच मेरा खत्म हो गया है. ठीक है, सो इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन.
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। ठीक है, अभी आपने पांचों की पांच देख ली हैं। अभी सपोज यू आर अ पर्सन whose need I am talking about. Now tell me which stage is the most important or जो self actualization. इसी में सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। नहीं, बेसिक है, बट आई एम आस्किंग कि आप क्या चाहते हो, कि आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। How many of you are saying the fifth one? How many of you are saying? My question is which stage is the most important? हाँ जी, in the online. ये बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड्स ही होती है, दैट इज फिजियोलॉजिकल। I am asking which stage is the most important. Okay, how many of you are saying the self actualization, the fifth one? 1 2 3 and 4. Okay, and in the online? नहीं, अभी छोड़ दीजिए, तभी मैंने। Okay, how many of you are saying the self esteem? Okay, those who are saying the self esteem, why the self esteem? मैम रिकॉग्निशन मिलेगा तो उससे मोटिवेशन आएगा, तो इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद इंडिविजुअल की ग्रोथ रुक जाएगी। He has achieved the full potential. अब उसके बाद फुल पोटेंशियल जितना है अचीव कर लिया, उसके बाद और कहाँ से मोटिवेशन करके, कहाँ से एफर्ट करे। सपोज अ आइडल ह्यूमन बीइंग जो प्रोग्रेसिव है, पोटेंशियल है, उसके लिए so the answer is self esteem needs. Why self esteem needs? Because in this self actualization it is something which is personal, which is depend upon the person. अब आप IIT ग्रेजुएटेड हो, सपोज कर लो कि उसके बाद यू गेट अ पैकेज ऑफ 40 लाख या 60 लाख का ईयरली आपको मिल गया है पैकेज। इवन मान लीजिए आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया है ईयरली, एंड योर फैमिली इज फीलिंग लाइक कि अरे वो सबको बता रहे हैं देयर इज लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, लॉट ऑफ आप ये बोल सकते हो यू आर फीलिंग अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, और आपको ये लग रहा है कि हाँ यू वर वर्किंग हार्ड एंड यू गेट द फ्रूट, ये हो गया है। बट आपके मन में देयर इज अ हाई पावर फॉर द देश सेवा, और उसके लिए आप IIT का अपना वो जॉब छोड़ के यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज यू नो व्हाट इज योर पोटेंशियल एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट। मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो स्टेज है, ये स्टेज बेसिक ऐसी स्टेज है जो रिलेटिव है, जो पर्सन के पर्सनल माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करती है। बट दिस सेल्फ एस्टीम नीड्स ये अदर पर्सन की इंटरप्रिटेशन पे मैटर करती है। मीन्स आपको सब बाकी सब के हिसाब से आप सब कुछ अचीव कर चुके हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम, बट क्योंकि आपको लग रहा है नहीं दिस इज नॉट माई पोटेंशियल, बाकी सबको लग सकता है कि हाँ ये तो ड्रीम कम ट्रू है, बट मेरे लिए ड्रीम कुछ और है जहाँ मैं अपने पोटेंशियल को टेस्ट कर सकता हूँ, तो वो आपको लगता है ना, बट सोसाइटी आपको यहाँ 5 स्टार दे चुकी है। सो दैट्स वाई दिस स्टेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज। नाउ कोई डिसएग्री करेगा मेरे से? बिल्कुल कर सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश। हाँ जी, वाई? बट आई एम गोइंग टू आस्क मैनी क्वेश्चंस। कौन से में? 4th है ये, ऐसे हैं 1। अच्छा एक सेकंड, मुझे ना फिर ऐसे पता नहीं चल रहा है, आप बताओ कौन से की बात कर रहे हो आप? हाँ 4th की बात कर रहे हैं वो। हाँ जी
हाँ हाँ कि जो व्यक्ति होता है वो किस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते हम्म वह अपने द्वारा मतलब अपनी क्षमताओं को मैक्सिमम यूटिलाइज करके अपनी जो इच्छाओं की मतलब पूरा पूर्ति कर लेता है। हम्म तो फिर अब जो आपने भी बताया कि जो मतलब पांचवा नंबर पॉइंट है हम्म कि वह दोबारा उठता है और फिर अपने पोटेंशियल को यूज करके अलग अचीवमेंट प्राप्त करता है। हम्म मैम अभी तो पोटेंशियल है ना उसमें, तो हम्म फिफ्थ में कैसे पहुंच गया? हाँ वो फिफ्थ में कैसे पहुंच गया मैम? दोबारा आपको बताना पड़ेगा, समझ नहीं आया मुझे। हाँ 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 अच्छा, एग्जाम्पल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लेके चलना। आप ये बोल रहे हो कि इन द फर्स्ट स्टेज दैट पर्सन हैज गॉट द रिकॉग्निशन, द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ चुका है। अब ये हर पर्सन नहीं होता कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में पहुंच पाए, हर पर्सन नहीं होता, किसी का स्टेज यहीं तक खत्म होके रह जाता है और कुछ होते हैं जो इस स्टेज में पहुंच पाते हैं। अभी बताइए। हम्म पहुंच जाएगा। हम्म हम्म बिल्कुल, बट आर दे यूटिलाइजिंग दैट और नॉट? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। ये आप बोल सकते हो कि क्या उसे यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं। हाँ तो तभी तो ना कि फिफ्थ में कोई जाएगा नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये फोर्थ स्टेज हो गई, क्योंकि इस तक तो हर कोई अपने पोटेंशियल को टच करना चाहेगा, यहाँ तक तो हर कोई जाना चाहेगा। उसके बाद ये स्टेज जो है आप ये बोल सकते हो 7 स्टार पर्सन के लिए है, 5 स्टार तक तो हर कोई जाएगा ही जाएगा। ठीक है नाउ, हाँ जी, हाँ हाँ आपका एक्सपेक्टेड था दैट यू विल वेरी। No, no, I am not saying other perspective से, I am saying because recognition मिल गया है, वो लगता है that you have achieved। बिल्कुल हम्म 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 So that's why I am saying na, it is relative, but this is the stage जिसमें हर कोई पहुंच पाएगा, पहुंच जाएगा। I mean to say ये वैरी करता है कि इस तक हर कोई पहुंचेगा या नहीं, इसीलिए तो वो आप थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो और पहुंचने की कोशिश करो। पहुंचने के बाद नलीफाई माय स्टेटमेंट, देन आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ ओके इसके ऊपर ना डिस्कशन बहुत हो गया है, लेट्स प्रोसीड फर्दर, क्योंकि इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आपके माइंड में सेटल हो पाया है इट्स गुड एनफ, इफ़ यू कैन एबल टू यूज इट गुड एनफ। अगर आप कंफ्यूज करना चाहते हो यू मे कंफ्यूज योर सेल्फ, ठीक है कर सकते हो, बट इट्स नॉट राइट, क्योंकि जितना ओवरथिंक करोगे उतना ही मैक्सिमम चांसेस होता है दैट यू आर गोइंग टू चूज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ओके सो नाउ टेल मी विच इंडिकेटर इज रेलिवेंट फॉर इंडिया, इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप क्या देखना चाहते हो इंडिया के लिए, कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। वाई? बिकॉज वी वांट कि देयर मस्ट बी इंक्लूसिव ग्रोथ विद डेवलपमेंट ऑफ all the sector of the economy, growth with development of all the sector of the economy. So now we are going to proceed. अब आप सब भी ना हम डिफरेंस करने वाले हैं। सो ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे द पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है वो आएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
first one is the meaning. First one is the meaning. So economic growth, it means you have increased the amount of production and industrialization. Means you have increased the amount of goods and services, or you have increased the value of production. So you can say increase in production of goods and services. Or economic development, it means you have achieved a stage where you have reduced the unemployment, reduced the poverty, reduced the hunger, and you are developing the actual public which needs the development. So यहाँ पे you can put you have reduced the unemployment, reduced the poverty, achieved full employment. Full employment का मतलब होता है the highest potential with that production or industrialization you can achieve. It is the highest potential. Full employment का मतलब है, चलिए यहाँ पे हल्का सा लिख देती हूँ. It is the full potential of production level to create the employment. कि ये जो production है ये जितना employment create कर सकता था, that production has created that much employment. उसके बाद ये production नहीं और कर पाएगा. Now you need to industrialize more. अब आपको बाकी और industrialization करना पड़ेगा. ठीक है? Is it clear to everyone? Second, increment. सेकेंड, इंक्रीमेंट. इसका मतलब क्या होगा कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो आपको किस में इंक्रीज दिखना चाहिए? इन द जीडीपी, इन द नेशनल इनकम. सो यू कैन से इंक्रीज इन, कैन आई से जीडीपी इज बेसिकली द प्रोडक्शन, द आउटपुट. You are using some factor input and with that factor input you are creating a output. और इस आउटपुट को कैन यू से लाइक रियल आउटपुट. रियल आउटपुट मीन्स रियल प्रोडक्शन जो हो रहा है. सो कैन आई से इंक्रीज इन रियल आउटपुट. एंड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम बेसिकली दी नेशनल इनकम विच नेशनल इनकम क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स व्हाट? हु सेड द पर कैपिटा इनकम? यू सेड द one minus. You said per sector income, per citizen income. Do you have any points? Do you have? No? So join hand with the Anup. You are going to have a minus point. हाँ जी. नेशनल इनकम जब मैं बात कर रही हूँ, क्या मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रही हूँ? देन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फैमिली इनकम. फैमिली इनकम क्या था? इट इज द टोटल इनकम. सो पर कैपिटा इनकम इट मीन्स द पर मेंबर या पर सिटीजन, यू कैन से लाइक दैट. बट नेशनल इनकम, इनकम एज ए होल मैं बात कर रही हूँ. ठीक है? इनकम एज ए होल. जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट किस में शो होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द क्वालिटी ऑफ लाइफ. वेरी गुड. हाँ जी, 1 पॉइंट टू यू आशीष. हाँ जी, लेट मी सी इन दी ऑनलाइन. ऑनलाइन में भी पॉइंट देना है मुझे. हाँ जी, वेरी गुड आफ्ताब एंड अजय. 1 पॉइंट टू यू बोथ. हाँ जी, नेक्स्ट
The third one, focus. थर्ड वन, द फोकस. यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में आप किस चीज को फोकस कर रहे हो? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो यहाँ पे यू आर जस्ट फोकसिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप किसके ऊपर बात कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन, वेलबींग. सो यू आर गेटिंग 2 points. हाँ जी, ताली हो जाए. माइनस भी इन्होंने अपना प्लस कर लिया है. हाय, तो आप दूसरों के दुख से नहीं, सुख से इतना दुखी हो, तालियां भी नहीं बजाते हो. हाँ जी, किसके ऊपर? सो वी हैव सीन देयर इज 3 things. First you are going to produce, then you are going to produce, then you are going to distribute, then you are going to consume. Then you are going to consume. अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो चुका है? इकोनॉमिक ग्रोथ. इस पॉइंट पे, डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. The person who can afford, that particular person will consume, and the affordability, it indicates that there is reduction in the poverty. If a person can consume, then it indicates there is reduction in the hunger. So क्या ये दोनों पॉइंट आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो नहीं करते हैं? एंड दिस पॉइंट इज शोइंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. सो बेसिकली यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो किसके ऊपर? यू आर फोकसिंग ओवर द प्रोडक्शन पार्ट, एंड हेयर यू आर फोकसिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. That is a part, another part. That is basically, yes, because in the distribution of income you are just paying the income to the factor inputs. So जब when you are transferring the income to the factor inputs, so basically आप उनको affordability उनकी बढ़ा रहे हो ना. So that point, distribution of income. ठीक है? Is it clear? Next, fourth point, that is nature. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सिर्फ ये एक एस्पेक्ट दिखा रहा है ना, दैट यू आर ग्रोइंग विद सम नंबर्स. अब वो नंबर से दैट पर्टिकुलर नंबर इज ट्रिकलिंग डाउन द बेनिफिट और नॉट, वी डोंट केयर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो क्या मैं इसको यूनिडायमेंशनल बोलूं? इट इज शोइंग ओनली द वन डायमेंशन, दैट आर वी प्रोड्यूसिंग और नॉट. सो इट इज यूनिडायमेंशनल. इकोनॉमिक ग्रोथ में यू आर जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्शन. यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव प्रोड्यूस्ड, विद दैट प्रोडक्शन आपका काम हो गया खत्म. वाई? बिकॉज विद दिस प्रोडक्शन यू हैव अचीव दिस स्टेज ऑफ कि आपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लिया. अब जो आपने प्रोड्यूस किया है, क्या कंट्री को उसकी ज़रूरत है? क्या वो सेल होगा? क्या वो इनकम जनरेट करेगा? आर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज ट्रिकलिंग डाउन द बेनिफिट? जो बेसिक हमने वो डायग्राम किया था, दैट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो दोनों स्टेज तक हमने बस अचीव कर लिया है. क्या कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लिया है. अब उसकी कितनी भी डायमेंशन हो सकती है. वो डायमेंशन कब होंगी? जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज में, आर वी गोइंग टू एंटर द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट्स व्हाई इट इज यूनिडायमेंशनल. कैसा है? इट हैज ओनली वन डायमेंशन एज अ नेचर, एंड इट ओनली फोकस ऑन द इनकम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. उस पर फोकस नहीं करता कि वो इनकम जिसको हमने ट्रांसफर करके दी है, दैट पर्टिकुलर पर्सन नीड दैट इनकम और नॉट, या वी आर ओनली गोइंग टू रेज द इनकम इनइक्वालिटी. क्या हम सिर्फ यही कर रहे हैं क्या? ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वाले इसमें लिखिए, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? इट इज मल्टी डायमेंशनल. एक तो ये, दूसरा वी आर जस्ट चेकिंग आउट दैट कि हमने जो इनकम अचीव करी है बिकॉज ऑफ दैट
ये जो हमने ट्रांसफर किया था बेनिफिट, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफरिंग ऑफ बेनिफिट, सो आर वी अचीविंग द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ लाइफ? देख रहे हैं ना? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वी हैव सीन द इनकम हाउ विद द पर कैपिटा इनकम, और जैसे पर कैपिटा इनकम देखा उसके साथ ही वी हैव अचीव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Quality of life, the standard of living. Ab this standard of living is basically providing a room for economic growth. If your standard of living is raising, you are further demanding for the product. When you are demanding for the product, on your demand, industries are going to produce more. So can you say like that economic growth, it necessitates the economic development, and when there is economic development, the economy is going to grow more and more, and that growth will necessitate the development further. So क्या ये एक लूप होल नहीं बन जाएगा? It is the loop hole, but that growth must be inclusive growth. Is it clear to everyone? हाँ जी, मेंस में इस पे पक्का क्वेश्चन आ सकता है. वाई? बिकॉज अभी बहुत बात हो रही है पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, दिस एंड दैट, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो बिल्कुल आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप. ये कौन से नंबर का होगा? आई थिंक 5th. हाँ जी, स्कोप में बताइए, खुद से ही बता दीजिए. Which one is like okay, so CSET में जैसे हम करते हैं, 2 बनाऊंगी मैं, तो आप बताना कौन से वाला सही है. ठीक है, हाँ जी, टाइम लो. अब किसी का भी गलत आंसर आया, आई एम गोइंग टू पुट अ पेनल्टी. हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ए? हाथ उठा के रखना. मंजीत इज सेइंग माय आंसर इज इन प्रोसेसिंग. ओके, यू आर थिंकिंग. हाँ जी, आप आपके पीछे. हाँ या हाँ जी, आप ए और बी. ए, हाथ तो दिखा नहीं मुझे आपका. अच्छा, किया था. ओके, हाँ जी, सोच लिया. ए, हाँ, बी. ओके, हाँ जी, इन दी ऑनलाइन एनी वन ऑफ यू? शिल्पा बी, अविनाश बी, Nihal, you are saying B. You are saying B. So you are also saying B. How many of you are changing your answer? हाँ जी. अच्छा, you are saying B and you are saying B, you are saying B. Okay. So आप तीनों का पॉइंट हो रहा है कट. You just tell me. नहीं, you just tell me कौन सा ज़्यादा वाइडर है. जो वाइडर होगा उसका एरिया बड़ा होगा ना. इकोनॉमिक, अच्छा, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था ना. तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ. हाँ जी, पॉइंट थे ना आपके पास? कितने थे आपके पास? पॉजिटिव से ही होगा, बट फर्स्ट स्टेज यही है. और इकोनॉमिक, देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा, बट उसके बाद ये चलता जाएगा. सो इस वजह से वाइडर स्कोप, जिसका जितना ज़्यादा एरिया वो उतना ज़्यादा वाइडर. ये तो सीधी सी बात थी. नैरो क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये कम है.
इस वजह से सो इसीलिए कैन यू से लाइक दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वी कैन से लाइक दैट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, दीपक पांडे, यू आर ऑल्सो गोइंग, आई एम गोइंग टू पेनलाइज यू। इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट आएगा। तो बट डेवलपमेंट होता जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम को मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा को मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं आप सबको कंफ्यूज इसीलिए करती हूँ सो दैट कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठो तो एग्ज़ाम आपको कंफ्यूज ना कर पाए कि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हो, ठीक है। वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं कंफ्यूज करूँगी, आप बोलोगे नहीं हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, आ जाता है। स्कोप आपने लिख लिया कि नैरो स्कोप है एंड इट इज अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नैरो एंड सबसेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दिस इज वाइडर and you can say it is comprehensive in nature, yes. Next come indicators, wider. हाँ जी, जल्दी से मुझे लिखवाइए इंडिकेटर्स। जीडीपी, कैन आई राइट लाइक दैट, ग्रोस नेशनल इनकम, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट नहीं, ग्रोस नेशनल इनकम की मैं बात कर रही हूँ। नहीं आ सकते हैं, अभी क्या है ना, इस चैप्टर के बाद वी आर गोइंग टू डू दी जीडीपी वाला चैप्टर, सो उससे आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज एनडीपी, जीडीपी, ये सब कुछ। हाँ, ग्रोस नेशनल इनकम, ठीक है, एंड पर कैपिटा इनकम, आई कैन राइट पर कैपिटा अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज। हाँ, ग्रोस नेशनल इनकम क्या है वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास जब हम जीडीपी वाला चैप्टर करेंगे। हाँ, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। हाँ जी, जीएनपी भी होगा बट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वो क्या होता है, वो नेशनल इनकम ही होता है, बट नेशनल इनकम उसमें एनएनपी निकल के आता है, बट अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए जितना है इतना अभी रख लो, ठीक है, परसों पता चल जाएगा क्या कुछ होता है। नाउ अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके इंडिकेट, ओके, you need to tell me everything about the Gini coefficient. Yes, I know you can tell, that's why I'm asked. Okay. Okay. Okay, Lorentz curve, it is the, how you will, graphical representation of, हाँ जी बिल्कुल, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है, आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी दैट यू रिमेंबर्ड एवरीथिंग, वेरी गुड, ठीक है। सो इसमें हम डाल सकते हैं क्या, HDI दी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और इसमें हम डाल सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें हम डाल सकते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ जी, कुछ बता, इसमें हम, हाँ अच्छा, सो यू आर, या वो इसके इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स मीन्स इनके अंदर होते हैं वो, तो वो कल करेंगे हम, ठीक है। हाँ, लिटरेसी रेट, हाँ, यू कैन नॉट पुट लाइक दोज नंबर्स अंडर डेवलपमेंट, हाउ, ठीक है। हाँ जी, और क्या आ सकता है, इसमें आएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। सो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स इसमें आ सकते हैं बेसिकली। अब क्या क्या इंडिकेटर हैं, कौन कौन से हैं, कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डू ऑल द इंडिकेटर्स, व्हाई, बिकॉज फ्रॉम द प्रीलिम पर्सपेक्टिव ऑल दोज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अभी यू आर फॉर द डेमो, सो वी आर टुडे वी आर डूइंग द टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो पूरा हम कवर करके आ चुके हैं एंड अभी क्या है कि आप मिडवे में आए हो, सो इट may be difficult for you to follow up. So basically we are doing the differences between the economic growth and economic development. So growth means what? You are growing, development means what? Growth
with development of all these segments. So you are basically spreading the effect of the growth to the masses. So that's why it is wider, it is narrower. So अभी आप थोड़ा follow up करने की कोशिश करना, okay? हाँ जी. किसमें? किसमें लिखा है? अच्छा अरे ये इसको हाँ लास्ट टाइम भी ये कट करो इसको, ये वो हो गया है मिस प्रिंट. कट करिए इसको. किसका? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स. हाँ जी, आपके नोट्स में एक मिस प्रिंट हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको कट कर दीजिए. अरे इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है. हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से उसका इफेक्ट स्प्रेड हो रहा है. नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज जस्ट ये वाला थिंग है ना. हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. अच्छा नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स वाला बिल्कुल कर सकते हो आप आफ्ताब, क्योंकि इट विल लीड टू प्रोडक्शन. बिल्कुल कर सकते हो. नहीं आएगा, इसको कट करना है. नहीं, ठीक है. नेक्स्ट आप आ जाइए. नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा मीन्स प्रोडक्शन. यू कैन अचीव दैट प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट टाइम. दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भी शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, बट उसका ट्रांसफर इफेक्ट, ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट, इट विल टेक टाइम. सो ये कैसा रहेगा? शॉर्ट टाइम पीरियड. एंड ये कैसा रहेगा? लॉन्ग टाइम पीरियड. और एक बार आपने you have crossed the stage of economic growth, that industrialization, and because of that industrialization you have achieved the reduced unemployment. So उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं रुकने वाला. Then you are bound to enter the next stage, that is after unemployment you have achieved the poverty, then hunger, then standard of living, then you will demand more and you will produce more. So when you are demanding more, when you are producing more, so उस केस में क्या एक बारी when you have entered this stage of economic development, so उसके बाद आप नहीं रुकोगे. You are going to enter the another level of economic growth, then another level of economic development. So ये कैसा रहेगा? It is continuous, एक loop है that you have achieved. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए एस्पेक्ट. इसमें कौन कौन सा आएगा आप बता ही सकते हो? इसमें क्वांटिटेटिव आएगा और इसमें क्वालिटेटिव आएगा. ओके. सो पर कैपिटा इनकम, इज इट अ क्वांटिफाइंग समथिंग और इट इज क्वालिटीफाइंग समथिंग? क्वांटिफाई कर रहा है. ओके. पर कैपिटा इनकम, सपोज जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ऑफ योर फैमिली इनकम, आपका जो 1 लाख रुपीस था, दैट इज बेसिकली क्वांटिफाइंग. बट बिकॉज ऑफ दैट 1 लाख वो आपको मिल रहा है क्या? नो. बिकॉज ऑफ दैट 1 लाख योर पॉकेट मनी इज गोइंग टू रेज. बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीमेंट इन योर पॉकेट मनी योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू रेज. सो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गोइंग टू रेज. आपको सपना आ रहा था, सपने से एकदम से जगे और इन्होंने बोल दिया नेशनल इनकम है. सो नाउ यू जस्ट टेल मी कि जैसे आपका पॉकेट मनी रेज हुआ, your standard of living has raised. Because of that standard of living you are going to enter in that qualifying stage. So the per capita income, it can come under the economic development. So क्या मुझे ये बोलना चाहिए it only indicates the qualitative aspect? It indicates both qualitative plus क्वालिटेटिव. अभी ये देखिए, अभी बताती हूँ क्यों आया है ये. वो कहाँ गया हमारा? अच्छा वो मैंने
नहीं, आई थिंक मैंने वो रेज कर दिया था ना, चलिए अभी दोबारा बना देती हूँ. इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. All the features of economic growth is come and are going to enter into economic development. They all will come under economic development. So if it is like you can say it is quantitative aspect, so ये qualitative है, ये quantitative है, दोनों मिलके economic development, quantitative plus qualitative, ठीक है. So इसमें लिखिए it is quantitative and it is qualitative. नेक्स्ट आ जाता है कंसर्न फॉर, कि कौन सा किसके लिए कंसर्न रहता है. अब आप खुद से बता दीजिए, अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज में हो देन आपको जस्ट नंबर चाहिए दैट यू आर प्रोड्यूसिंग और नॉट, यू आर अर्निंग अ इनकम और नॉट, बस आपको वो चाहिए. यू आर ओनली कंसर्न फॉर द आउटपुट, यू आर ओनली कंसर्न फॉर द income. So it is output plus income. Here you are concerned for means for the single masses. अब मान लीजिए आपका इंडस्ट्री जो है, सपोज लेबर इंटेंसिव आप एक सेक्टर है पर्टिकुलर. अब वहाँ लेबर इंटेंसिव सेक्टर में बिकॉज यू हैव मोर इनकम, you are an entrepreneur, so it all depends upon you कि what kind of production process you want to introduce. आपने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगा दिया एंड यू नो कि आपके एरिया में देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे लेबर इज इन एक्सेस, तो आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाना चाहिए था, ठीक है. सो अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से आपको प्रोडक्शन तो मिलेगा, सो वहाँ से यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. If you are going to increase the production, so you have achieved this stage of economic growth. But that production, because that production is capital intensive, so that production is not creating job. So can you say like that it is a jobless growth? You can say like that ना कि ये jobless growth है. अब क्योंकि उस particular capital intensive industry की वजह से आपका production तो raise हुआ है, but you haven't created the job. You haven't provided the employment. तो क्या आप तब ये बोलेंगे कि वहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रिकल डाउन नहीं किया इफेक्ट? आप बोलोगे ना, तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि when you are going to enter into the economic development, so you need to change the stage. स्टेज कैसे चेंज करना है? You have to transform your industry from capital intensive to labor intensive. So you are going to introduce some स्ट्रक्चरल चेंज. जब आप अपने पूरा इकोनॉमी में, आप अपने सिस्टम में यू आर गोइंग टू चेंज दिस स्ट्रक्चर, सो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल चेंज को हम क्या बोलते हैं? दैट कि हमने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यू वांट सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, दोज चेंजेस व्हिच विल बेनिफिट द इकोनॉमी. सो वो इकोनॉमी को बेनिफिट करेंगे. सो इट इज द स्ट्रक्चरल चेंजेस. स्ट्रक्चरल चेंजेस. हाँ जी शिवांगी, ये मेंस में बिल्कुल आ सकता है. अभी बताती हूँ पूरा ये होके ना, फिर बताती हूँ कि कैसे आ सकता है. कैन आई से लाइक दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हेन आई हैव द इकोनॉमिक ग्रोथ, and with that economic growth I am just adding one aspect, that is basically the standard of living. So I am going to achieve the economic development. Can I say like that? अच्छा, वो डायग्राम कहाँ मिलेगा हमारा? मिल गया. हाँ जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ था ना. सो अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने ये वाला स्टेज दैट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें मैंने प्लस कर दिया ये वाला स्टेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कैन आई से लाइक दैट? मीन्स मैंने क्या किया है, हाइड कर लिया है दिस एंड दिस पॉइंट को. बट इफ आई एम सेइंग देयर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
विद दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं क्या नेसेसिटेट कर रही हूँ कि ये आया कैसे होगा, ये ऐसे ही घूम के आया होगा। अगर मैं आपको ये पाथ भी ना दिखाऊं और जस्ट बता दूं दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैन आई से लाइक दैट कि ये हुआ होगा? इज इट इम्प्लाइड? तो आपको ऐसे घुमा के ही मेंस में आंसर क्वेश्चन लिखने को आ सकते हैं कि कोई स्टेज को हाइड कर देंगे और तब आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज अ एस्पेक्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड आप अपने मेंस में देखना कि मेंस का सिलेबस आज यही होमवर्क है आपका, GS 3 का मेंस का सिलेबस देखना है इकोनॉमी का, और उसमें देखना है आपको इंक्लूसिव ग्रोथ और उससे रिलेटेड क्या एस्पेक्ट पूछे हैं। ये पॉइंट देख लिया। अब आपको, चलिए इतना तो आप नहीं कर पाएंगे बट इतना मैं करके लाऊंगी आपके लिए। हाँ चलिए ठीक है। सो मैं आपको या तो मैं चैनल के ऊपर डाल दूंगी इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हैं और कैसे कैसे आए हैं, या तो मैं स्लाइड लेके, वैसे भी कल स्लाइड वाला होने वाला है तो कल चलिए मैं स्लाइड में ही लगा दूंगी कि क्या क्या इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं हमारे। सो उससे आपको पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ अलग से हमारा टॉपिक होगा, बट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट इंक्लूसिव ग्रोथ विद दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ना, तो ऐसे ही तो अचीव करोगे। सो दैट्स दिस इज द फर्स्ट लेडर टू अचीव दैट इंक्लूसिव ग्रोथ। यस। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 10th पॉइंट, हाँ जी इसमें लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट पॉइंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। Can these two remain in economic growth? Means you can say it may remain. May remain बोला, काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। So it may remain. When you are saying you are in this stage of economic development, जब मैं बोल रही हूँ आप उस स्टेज में हो तब ये हो सकते हैं, तब नहीं हो सकते। बट देखिए यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप ये सोच सकते हो कि नहीं, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी तो एग्जिस्ट करता ही है, बट जो मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ये बोलता है कि नहीं, आप अपर लेवल का जो डेवलपमेंट है वो अचीव कर चुके हो, वहाँ ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका डेफिनेशन ये नेसेसिटेट करता है कि यहाँ पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। मींस अगर आप पहुंच चुके हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज में तो ये दोनों नहीं होंगे। सो क्या आप ये बोल सकते हो, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कोई एक ऐसा कंट्री जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर चुका हो? नॉर्थ कोरिया, हाँ जी शिवांगी, सब मिलेगा, सब मिलेगा। हाँ, यू आर बेसिकली सेइंग द नॉर्वे, डेनमार्क। ओके, सो ना अब आप सबको क्या एक और होमवर्क दे रही हूँ आप सबके लिए। आप सबको स्टडी करके आना है, किसको? फिनलैंड को, ठीक है। आप सबको स्टडी करके आना है। इट्स मस्ट लाइक अ केस स्टडी। सो आप ये आपको ऐसे सर्च बार में ऐसे डालना है, व्हाई फिनलैंड इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड, ठीक है। सो जो भी रिलेटेड स्टडी आएगी, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल आएगा, कुछ भी वो पढ़ना है और पढ़ के आपको मुझे कल आके अपना स्टडी बताना है कि मैम मुझे लगता है वहाँ इस वजह से हो रहा है, ठीक है, डेवलप। हाँ, फिर नेहा बोलती है मैम सर्च बार में डालूं क्या, ये बता दो मुझे। और मैम इंग्लिश में बताना क्योंकि गूगल हिंदी पसंद नहीं करता।
हाँ जी आफ्ताब, वेरी गुड। बाद में देखना है आमीन, इट्स होमवर्क। वो होता है ना कि अगर क्लास में स्टूडेंट होमवर्क करता दिखे तो पूरी कॉपी पे उसके मार्क लगा देते थे स्कूल में, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए रेलिवेंस। रेलिवेंस ये नहीं, हाँ, कि पॉवर्टी और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड ये कैसे आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसे आएगा। मीन्स poverty and inequality they won't exist in economic development, exist नहीं करेंगे। and ये अचीव कैसे होगा, when there is economic growth and standard of living then we are going to achieve the economic development। ठीक है, नोट्स में है ये पूरा अच्छे से सेंटेंसेस में, अभी मैं आपको जस्ट इंडिकेशन दे रही हूँ। ठीक है, हाँ जी निहाल, बिल्कुल होगा। हाँ जी, थैंक यू आफ्ताब। वही मैं बोलती हूँ ना, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज एबल टू यूज और नोट, सो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट जो आ जाता है रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या है कि आपको क्या लगता है, अभी आप सबने मुझे ये बोला था, मैंने जब पूछा कि विच वन इंडिकेट, कि इंडिया के लिए विच इंडिकेटर इज मोर रेलिवेंट, इज इट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप सबका आंसर क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें मेजर करना है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, तो कौन सा इंडिकेटर ज्यादा रेलिवेंट है, इज इट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So because it's quantifying things, you can compare one country with the other. Your country's standard of living can seems like a poor country for others, but आपको खुद में rich feel हो सकता है। Is it relevant or not? हाँ, because in the village they have that kind of satisfaction level, अपना आराम से रह रहे हैं, they don't have anything with that। आप ये बोल सकते हो कि वो जो चल रहा है इन दी इकोनॉमी, दैट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ चल रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चल रहा है, उससे कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, सो हाँ जी, फिर बताइए। इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इंडिया के लिए आपका आंसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों था। So which indicator is more relevant? You can say like that, both indicators are relevant in different aspects. If you need to compare the growth of different countries, so you need to resort for economic growth. Why? Because economy में if you need to compare, आप न्यूज़पेपर में क्या देखते हो, आप न्यूज़पेपर में सिर्फ यही देखते हो कि हुज, आप जीडीपी का भी रैंक आता है जीडीपी के हिसाब से। चलिए एक और होमवर्क, आपके 3 हो गए ना, एक तो आपको सिलेबस देखना है, दूसरा आपको फिनलैंड का केस स्टडी करके आना है, और तीसरा होमवर्क आपका ये है कि आपको देख के आना है कि इंडिया का जीडीपी रैंक कितना है इन दी वर्ल्ड। मैं नहीं बताऊंगी, बता दिया तो आप काम नहीं करके आओगे, बट आपको चेक करना है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको अब और एक और काम ये करना है कि रैंक आपको सारे देख के आने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ। ठीक है, हाँ मिल जाएगा, अरे सब मिलता है, गूगल को यूज करना सीखिए। ये जस्ट मैं आपको आदत बना रही हूँ कि आपको गूगल को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन सब है, कौन उसे यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अभी तो 7th हो रहा था, बट मैंने काम बता दिया ना, 8th तक देख के आना है। सो अगर आपको किसी भी डेवलप्ड कंट्री को मेजर करना है,
So for a developed country, economic growth is relevant. But when you need to compare developing countries, like आपने इंडिया के बारे में भी बताया that we are going to resort the economic development, तो तब आपको देखना है economic development. So you can say like that, for developing countries आपको कौन सा इंडिकेटर देखना होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड फॉर दी डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज, आपको कौन सा देखना है? इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इस तरीके से बेसिक आपका ये होना चाहिए. जैसे कि हम दो डेवलपिंग कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो नहीं, इफ यू नीड टू कंपेयर तो जीडीपी के डेटा से ही करोगे ना. मीन्स क्या कि कौन सी कंट्री को किसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. अब मुझे आप ये बताइए, यूएसए में अगर आपने कोई लॉ ब्रीच कर दिया है तो आपको वहां किस टाइप की जो पनिशमेंट या पेनल्टी दी जाती है वो कैसी होती है? आप सबने किसी ने सुना है या देखा है? यूएसए में या यूके में या मैक्सिको, कनाडा, देखा है? हाँ जी, आफ्ताब बताइए. नहीं, देखिए वहां बेसिकली क्या होता है ना कि इन केस, ऐसे क्रिमिनल केस में नहीं बता रही हूँ मैं, कोई सिविल आपने कोई पेनल्टी अगर पनिशमेंट हो जाती है तो वहां पे आपको ये पनिशमेंट दी जाती है कि आपको उस दिन यहाँ आके ये वाला पब्लिक प्लेस क्लीन करना है. तो ऐसी, हाँ जी, तो इस तरह की वहाँ पे मीन्स क्या है, फॉरेन कल्चर ऐसा ही है. सो इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती है. और वहाँ क्या होता है, वहाँ पे हॉलीडे लेना ऑन दी वर्किंग डेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो इस तरह की बेसिक उनको पनिशमेंट दी जाती है. अब आप ये चीज़ तो मानोगे ना कि इफ़ अ पर्सन इज गोइंग आउटसाइड द कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं इंडिया से, सो वो बेसिकली जा क्यों रहे हैं? बिकॉज दे वांट एम्प्लॉयमेंट. अब अज्यूम करिए कि एक पर्सन, अब कोई ऐसे तो जाएगा नहीं जिसके पास पैसा ना हो, आप आराम से 12 से 15 लाख रुपीस लगा के बाहर फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां जाके आप काम कैसा करते हो? लेबर वर्क, फिजिकल वर्क. सो बेसिकली यू आर डूइंग द फिजिकल वर्क. सो बिकॉज यू आर डूइंग द फिजिकल वर्क, तो अब उस बेसिस पे बताइए वहां आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है ना. सो देयर इज नो फियर फॉर एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो फियर फॉर हंगर, देयर इज नो पॉवर्टी केसेस, देयर इज नो केसेस लाइक कि हंगर की वजह से किसी का डेथ हो गया है इन द न्यूज़पेपर लाइक इन इंडिया. आई एम नॉट डिग्रेडिंग द इंडिया, बट मैं केसेस बता रही हूँ वहाँ कैसे मिलते हैं, यहाँ कैसे मिलते हैं. वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिच, उस वजह से दे मे इन्फ्लुएंस विद द ड्रग्स. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे यूएसए का कंपैरिजन करना है, आप अज्यूम करिए मुझे जापान से करना है या मुझे रशिया से करना है, तो क्या मैं ये देखूंगी किसमें कितनी पॉवर्टी है? वो तो उस स्टेज से ऊपर आ चुके हैं ना. क्या मैं ये देखूंगी कहाँ कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? मैं देखूंगी किसका कितना एक्सपोर्ट है, मैं देखूंगी जीडीपी कितना है, ट्रेड बैलेंस कितना है कंट्रीज के साथ, उनकी करेंसी का बेसिक वर्किंग कितना है. क्या मैं ये इंडिकेटर्स नहीं देखूंगी? तो यहाँ पे फॉर डेवलप्ड कंट्रीज व्हेन आई नीड टू कंपेयर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट क्या देखूंगी? इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ अगेन इन दी डेवलपिंग कंट्रीज के केस में इंडिया का इतना, मैं क्या बोलूं कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करना पड़ता है. इवन हंगर में हमारा जो रैंक है इनसे भी नीचे गिरा के रखते हैं, इनसे भी नीचे गिरा के रखते हैं. तो मीन्स क्या है कि अब आपका कंपैरिजन करना पड़ रहा है कौन से एस्पेक्ट के ऊपर. वो बोलते हैं कि जीडीपी आप अपना बाद में दिखाना, पहले ये देखो हंगर कितना है, पॉवर्टी कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है. क्या एज अ पर्सन जीडीपी का रैंक या जीडीपी का वैल्यू मैटर्स फॉर यू? एज अ पर्सन व्हाट मैटर्स फॉर यू? अभी तो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद आपको अपना पर्सनल की आप अपना नीड फुलफिल कर पाए. सो इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज उस चीज से बाहर नहीं निकल पाई हैं,
उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसीलिए हमारे इंडिकेटर्स वही रहते हैं. दैट्स वाई फॉर डेवलपिंग अगर वी नीड टू कंपेयर, सो हमें देखना है कौन सा एस्पेक्ट, डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट. फॉर दी डेवलप्ड हमें देखना है कौन सा, ग्रोथ वाला एस्पेक्ट. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल. कोर्ट सेशन, अच्छा आपने वो कोर्ट सेशन आते हैं ना, वो देखे हैं कि कोर्ट में कोई लाइक नहीं वो वाला नहीं, वो तो अपर लेवल का हो गया, वहाँ नहीं जाना है हमें. जैसे वहाँ ना कोर्ट का हियरिंग जो होता है ना, उसको वो दिखाते रहते हैं. हाँ यूट्यूब, हाँ वो लाइव दिखाते हैं. हाँ तो उसमें नहीं हमारा नहीं, मैं बात कर रही हूँ यूएसए का, है ना. हाँ तो उसमें बेसिक वो यही ना, छोटी छोटी पनिशमेंट देते हैं. कोई भी सिविल अगर उन्होंने ऐसा कुछ, क्रिमिनल लॉ के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सिविल अगर कुछ ऐसा कर दिया तो उसके अगेंस्ट दिखाते हैं. हाँ जी. सो अभी हाँ तो हम ना कल की क्लास में हम बेसिकली करने वाले हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. इकोनॉमिक ग्रोथ में आते हैं जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब ये हम परसों करेंगे, बिकॉज इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है. सो वो पूरा आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. जीडीपी के कौन कौन से मेथड होते हैं, लाइक कौन सा एक्सपेंडिचर है, इनकम है, प्रोडक्शन है. कल की क्लास में वी आर गोइंग टू डू द इंडिकेटर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो कौन कौन से होते हैं जो अभी हमने देखे थे, बताइए बिना देखे. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. एंड हम अभी हम बनाते हैं इंडिकेटर्स. अभी हम अपना जय अर्थशास्त्र इंडिकेटर भी बना देते हैं कि कौन कौन इकोनॉमी को सही से कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है. ठीक है. सो कल की क्लास में हम वो करने वाले हैं. और वही एक आप चाहते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के क्वेश्चंस, तो वो भी हो जाएंगे. एंड 3 आपके होमवर्क दिए गए हैं. ठीक है. सो अभी फटाफट से सबकी नोटबुक देखिए बंद होनी चाहिए, प्रिंटेड नोट्स भी बंद होने चाहिए. अभी जिससे मैं जो पूछूं उसको वो आंसर देना होगा, एंड जिससे पूछूं उसी को देना होगा. ठीक है. तो फायदा ये होता है कि अपना फेस का एक्सप्रेशन ऐसे बना लो कि मुझे तो आता है, तो फंसोगे नहीं. अगर किसी ने ऐसा बनाया तो फिर वो फंसेगा. ठीक है. हाँ जी. लेट मी रीड द फेसेस. हाँ जी. और ऑनलाइन में हर कोई बताएगा, क्योंकि ऑनलाइन में फेस नहीं देख सकती हूँ. हाँ जी. अनूप, इट्स अ चांस फॉर यू. अगर आपने बता दिया, कितने माइनस में हैं आपके? 2 माइनस में है. कब हुआ? हाँ हो गया था, तो अभी -1 में है, तो यू हैव अ चांस. सो टेल मी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसके ऊपर फोकस किया जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसके ऊपर, कोई बोलेगा नहीं. देखिए किसके ऊपर फोकस किया जाता है? हाँ अच्छा, क्वालिटी पे. मीन्स इनका किस्मत ही यही है, मतलब माइनस में रहना ही है. हाँ जी. आलोक, ओनली कंजम्पशन. अच्छा, कंजम्पशन से पहले. डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. ठीक है. आप दोनों को ही पॉइंट नहीं मिलेगा ना. हाफ नहीं होता है हमारे दरबार में, हाफ नहीं होता है. या तो प्लस होएगा या तो माइनस होएगा. यहाँ पे भंडारा नहीं है कि मेरे हिस्से का उनको दे दीजिए. हाँ जी. नहीं, ये अपना एथिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. हाँ जी. वरुण, अभी आप बताओगे. अरुण का फेस मतलब अभी से इसको हाँ जी. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसके लिए कंसर्न रहती है? इट कंसर्न फॉर व्हाट? प्रोडक्शन में क्या?
अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए कंसर्न रहती है? हाँ जी, आलोक के साथ में बैठे हैं, आपका नेम भूल जाती हूँ। आप नहीं आप हाँ नीलेश, हाँ जी नाम भूल जाती हूँ वापस से। हाँ जी बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन जो भी रिपीट करवाएगा पॉइंट का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसके लिए कंसर्न रहती है? इट कंसर्न फॉर व्हाट? ओके, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट कंसर्न फॉर व्हाट? हाँ जी, मंजीत ऐसे एक्सप्रेशन बना रहे हैं कि मेरा प्रोसेसिंग में आंसर, मैं याद कर रहा हूँ। हाँ जी, शुभांशु बताइए। इन्होंने स्टार्ट ऐसा किया था दैट ही इज गोइंग टू गिव अ ब्रिलियंट आंसर। ओके, हाँ जी प्रियांशु। It was structural changes. Economic development concerned for the structural changes कि आपको change करना है from either means ऐसा change करना है आपको that कि आपके change से आप जो trickling down of the benefit है वो कर पाएं, ठीक है। हाँ जी, आशीष कब से देख रहे हैं मैम? मेरी कब आएगी बारी? नहीं देख रहे तो माइनस में पॉइंट हो सकता है। हाँ जी, अभी आप मुझे बताएंगे नेशनल आउटपुट इट इंडिकेट्स व्हाट, और ये किस में आएगा और कैसे? आपके लेवल का क्वेश्चन पूछा मैंने। नेशनल आउटपुट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने आउटपुट की बात करी थी, और ये किस में आता है और इसका रेलिवेंस क्या है? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज नेशनल आउटपुट? इट ठीक है, एंड व्हाट इज नेशनल आउटपुट? हाँ जी चंद्रमणि आप बताएंगे। नेशनल आउटपुट, फैमिली इनकम इज द नेशनल आउटपुट। हाँ जी आप बताओगे। हाँ जी, national output it may be a synonyms for the real output, and what is real output? GDP. So you are going to have 1 point. Is it first time? हाँ जी ताली हो जाए इनके लिए। नहीं, आप सबको उनके साथ क्या बहस थी, उनके लिए तालियां नहीं बजाई आपने। रवि रंजन ना, हाँ जी हाँ, रवि रंजन के लिए नहीं बजाई। So we are going to wrap up our class. So जो आपके पास होमवर्क दिया है, you all need to do the homework. First one is the syllabus of economy, GS paper 3, then Finland case study, then GDP ranking with the country's name, and India का GDP में what is the India's rank for the GDP. Okay, so you all need to wait for 2 minutes. अभी कोई जाएगा नहीं because sir want to talk with all of you, so please sit there for 2 or 3 minutes. Okay, so हाँ जी